What is capital structure? Capital structure refers to what? A systematic approach. It's a systematic approach to financing. Financing what? Business activities. Financing what, beta? Business activities through a combination of equity and debt. Equity and liabilities, that is equity and debt. So what is capital structure? Capital structure refers to a systematic approach to financing. Finance karna, right? A systematic approach to financing what? Business activities through a combination of equity and debt. Equity and debt means equity and liabilities, where we can see this capital structure has been bifurcated into two parts, that is equities. Equities are what, beta? Own funds. Apna, right? Apna paisa laga. We are the owner, right? So equities are own funds and debt are what? Owed funds. Owed means loan funds. ये हमने बाहर वालों से लिया है as a loan. ठीक है? This is what बाहर वालों से लिया है हमने as a loan. So this is what capital structure, which has been bifurcated into two parts, right? Equities and debt. Normal meaning है, बराबर है, ये पहले भी पढ़ चुके हो आप, फिर भी एक बार रिव्यू करके रखो, जिसको नहीं याद है वो याद रखना, ठीक है? ऐसा बहुत बेसिक मीनिंग है, बट बेसिक मीनिंग बहुत काम में आएगी. सो कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू व्हाट? अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू फाइनेंसिंग. एक बार रिवाइज करो मेरे साथ, बोलो फटाफट. कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू व्हाट? A systematic approach to financing business activities through what? Through a combination of equities and liabilities. That is, liability here means what, beta? Debt. Capital structure रहेगा तो ही आप अपना business activity finance करोगे ना, through capital structure only. And your capital structure nothing but consists with equities and debts. Equities and debts. Okay. So equity means own funds and debt is what? Owed funds. Huh? What? Debt is what, beta? Owed means loan funds. Owed, OWED. ठीक है? और ये क्या है? Own. ये क्या रहेगा? ये owned fund होगा तो ये owed funds. OWE मतलब O. D लगा दिया तो owed. ठीक है? इधर own means OWN. ED लगा दिया तो owned. Simple. तो याद रखने का, कभी O आ गया it means what? Loan funds. ठीक है? ये simple meaning लिखा मैंने इधर, loan funds. Normally इधर O funds रहता है, O funds. Right? So equities and debt. That is what capital structure. Now, after the basic meaning of this capital structure, which has been consisted with what? Equities and debt, which is own fund and loan funds. Now the next is capital structure theories. अब ये आपका प्रैक्टिकल से रिलेटेड थियरी स्टार्ट होगा, ठीक है? सो कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज. Now capital structure theories has been bifurcated into two parts, that is capital structure relevance theory, that is capital structure relevant theory, and second one is what? Irrelevant. So first one is what? Relevant, yeah, relevance, and second one is what, beta? Irrelevance theory. तो याद रखो कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी, अपना चैप्टर का नाम क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी है ना बेटा. आवर चैप्टर नेम इज व्हाट? कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज एंड डिविडेंड डिसीजन. सो डिविडेंड डिसीजन बाद में आएगा, जबकि कैपिटल स्ट्रक्चर करने के बाद, ठीक है? तो पहले कैपिटल स्ट्रक्चर कर रहे हो तो कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज चैप्टर का ही टाइटल है वो, राइट? So capital structure theory has been bifurcated into two parts. First one is what? Relevant, and second one is what? Irrelevant. So relevance theory, irrelevance theory. इसको आप relevant theory और irrelevant theory बोलोगे. So this is what? Capital structure relevance theory, and this is capital structure irrelevance theory. Now, capital structure relevance theory means what? What is capital structure relevance theory? बराबर है? तो इसमें मैं आपको एरो दिखा देता हूं. सी. सो बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर रिलेवेंस थियरी मतलब क्या? चेंज इन इक्विटी एंड डेट कॉम्बिनेशन. अगर आपने इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन चेंज करते हो, अगर कुछ उसमें वेरिएशन करते हो, वेरिएशन करेगा अगर इक्विटी एंड डेट कॉम्बिनेशन में, सो दैट अफेक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी.
that affect what beta? Market value of the company. That is known as what? That is known as capital structure relevance theory. तो इधर मैं एरो दिखा देता हूं ताकि that will be better. ये देखो, ये एरो आ गया, ठीक है. So this is what capital structure relevance theory, correct है. So what is capital structure relevance theory? Capital structure relevance theory is what beta? Change in equity and debt combination affects the market value of the company. If you change in equity and debt combination, इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन में वेरिएशन हुआ, अगर आपने चेंज किया, राइट है, सो दैट अफेक्ट द व्हाट? मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी. दैट इज नोन एज रिलेवेंस थियरी. कैपिटल स्ट्रक्चर रिलेवेंस, रिलेवेंट हो गया ना. अगर आपने उस कॉम्बिनेशन में इक्विटी एंड डेट का कॉम्बिनेशन में चेंजेस कर रहे हो आप, राइट है, चेंजेस किया, समझो डेट आपने ज्यादा ले लिया या कम ले लिया, तो उसकी वजह से चेंज होगा कॉम्बिनेशन में. सो दैट अफेक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी. सिंपल सा फंडा. दैट अफेक्ट व्हाट बेटा? इररिलेवेंस थ्योरी. क्लियर है सबको? सो द एग्जांपल ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर रिलेवेंस थ्योरी कौन कौन सा है? इन कैपिटल स्ट्रक्चर रिलेवेंस थ्योरी नेट इनकम अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच आर देयर. नाउ कैपिटल स्ट्रक्चर इररिलेवेंस थ्योरी, क्या बेटा? कैपिटल स्ट्रक्चर इररिलेवेंस थ्योरी. नाउ द वर्ड सेज व्हाट? इररिलेवेंस. इररिलेवेंस मींस कोई रिलेशन नहीं होगा. इट मींस व्हाट? अगर आपने समझो इधर क्या है आपका, चेंज इन इक्विटी एंड डेट कॉम्बिनेशन अफेक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी. बट हियर आप कितना भी चेंज करो, बराबर है, इन इक्विटी एंड डेट कॉम्बिनेशन दैट डज नॉट अफेक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी. ठीक है, मींस नाम ही बोल रहा है ना बेटा, द नेम सजेस्ट इररिलेवेंस. मींस इफ यू चेंज इन इक्विटी एंड डेट कॉम्बिनेशन दैट डज नॉट अफेक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी. सिंपल बेसिक मीनिंग याद रखना. ऑब्जेक्टिव्स में तो आता ही है, शॉर्ट नोट्स में भी आता है, ठीक है, और 7 या 8 मार्क्स का क्वेश्चन भी रहता है. कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट अ नोट ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज. तो याद रखना, ये चार्ट बना के नीचे एक्सप्लेन करते जाने का, ठीक है. सो तो कैपिटल स्ट्रक्चर इररिलेवेंस थियरी में क्या हो गया बेटा? चेंज इन इक्विटी एंड डेट कॉम्बिनेशन डज नॉट अफेक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी. मतलब अगर कोई भी कॉम्बिनेशन में चेंज करो, समझो आपने डेट इंक्रीज कर दिया या डेट डिक्रीज कर दिया, तो उसकी वजह से मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है. इट डज नॉट अफेक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर इररिलेवेंस थ्योरी. राइट है, कैपिटल स्ट्रक्चर इररिलेवेंस थ्योरी. तो इसका प्रैक्टिकल इज वेरी सिंपल. Only the steps are there. Some steps are there. You have to follow those steps and give the analysis. It's very simple, right? But आपको theory clear होना चाहिए उसका. Now, capital structure irrelevance theory. Example of capital structure irrelevance theory is what? First, net operating income approach. What? Yes, net operating income approach and MM approach. कौन सा बेटा? नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच एंड मोदिग्लियानी मिलर अप्रोच. ठीक है, जिसमें ये जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट है, क्लियर? सो व्हाट आर द कैपिटल स्ट्रक्चर इररिलेवेंस थियरी? दैट इज नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच एंड मोदिग्लियानी मिलर अप्रोच, दैट इज एमएम अप्रोच. सो याद रखो बेटा, कैपिटल स्ट्रक्चर रिलेवेंस, कैपिटल स्ट्रक्चर इररिलेवेंस, एवरीवन हैव टू रिमेंबर इट. सो व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर रिलेवेंस? Say with me. Yes, here the change in equity and debt combination affects the market value of the company. Change in equity and debt combination, what beta? Affect the market value of the company. That is what relevance. Relevance theory, capital structure relevance theory. And what are those theories? Net income approach and traditional approach. What beta? Net income approach or traditional, net income approach and traditional approach. And here capital structure irrelevance theories are what? That is change in equity and debt combination does not affect, इधर affect नहीं करेगा, does not affect the market value of the company. Right है? So here what are those theories? Net operating income approach and Modigliani Miller approach. ठीक है, clear? अब बराबर है, कितना समझा उसके लिए मेरे को आंसर चाहिए. I want answer. कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी में व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर रिलेवेंस थियरी? तो चैट बॉक्स में आंसर डालना स्टार्ट करो. ठीक है, कम ऑन. व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर रिलेवेंस थियरी? कम ऑन, सबका आंसर आना चाहिए. जिसका आंसर आएगा, याद रखना सब रिकॉर्ड रहता है मेरे पास, पहले बोला ना इंटरनल के लिए. दिस इज वेरी.
So this net income approach is a part of what? Capital structure relevance theory. Capital structure relevance theory, which is means this approach is suggested by whom? Duran David. Now, according to this approach, capital structure decision is relevant. It is relevant to the valuation of the company, right? That is why it is known as capital structure relevance theory, ना? मतलब जो भी आपका कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन है, दैट इज इक्विटी एंड डेट कॉम्बिनेशन. इफ यू चेंज इक्विटी एंड डेट कॉम्बिनेशन, that affects the market value of the company. That is why here it is given that capital structure decision is relevant to the valuation of the company, right? It means, see here, like higher debt, what? Higher debt but up to a optimum level. Means ये तो कॉमन सी बात है. अभी डेट हायर ले रहा है, ठीक है, बट कुछ ज्यादा ही हायर लेगा तो वो अलग बात है. हायर लो बट एक ऑप्टिमल लेवल तक लो. अरे लोन लो तो एक ऑप्टिमल लेवल तक लो, ऐसा नहीं लोन लेते ही रहो, बराबर है? ऐसा लोन लेते रहेगा फिर तो फिर खत्म हो जाएगा, राइट? सो हायर डेट बट अप टू अ ऑप्टिमल लेवल. एंड यू ऑल नो दैट योर डेट इज व्हाट? डेट पे जो इंटरेस्ट पेमेंट करते हो, दैट इज व्हाट? योर टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर. सबको पता है ना? याद रखो कि डेट जो आप लेते हो, कंपनी जो डेट से फंड रेज करती है, तो डेट क्या है बेटा? डेट पे जो आप कॉस्ट पे करते हो, दैट इज इंटरेस्ट. दैट इज व्हाट? टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर, राइट है? वो क्या है? टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर. मतलब उसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है. कैसे? क्योंकि जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट वो कंपनी इंटरेस्ट किधर शो करती है? पीएनएल के डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में शो करती है, राइट? अब बेटा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आइटम शो करेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा. प्रॉफिट कम दिखाएगा तो अपना टैक्स भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. समझा कि नहीं? दैट इज व्हाई इट इज नोन एज व्हाट? हायर डेट. अगर डेट है, दैट इज डेट के ऊपर जो कॉस्ट आता है वो क्या होता है बेटा? टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट. वो याद रखो. Which increases financial leverage. What? Which increases financial leverage means simple funda. Higher debt. ये सब अगर शॉर्ट नोट्स में आता है तो दिखना चाहिए. ये सब पॉइंट, these points are very important. So higher debt. What बेटा? Higher debt. Higher debt लिया तो क्या होगा? Higher debt which increases financial leverage. What बेटा? Higher debt which increases financial leverage results into what? Results into decline in the overall or weighted average cost of what beta? Your financial leverage results into decline in the overall or weighted average cost of capital. मतलब सीधा सा फंड है. देखो डेट आपने बढ़ाया, अगर आप डेट इंक्रीज करोगे तो आपका जो इक्विटी एंड डेट का कॉम्बिनेशन है वो चेंज होगा. नॉर्मल सी बात है, कॉम्बिनेशन चेंज होना ही है. और वो चेंज होगा विच इंक्रीजेस योर फाइनेंशियल लेवरेज एंड अकॉर्डिंगली आपका जो कंपनी का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो डिक्लाइन होता है. क्या? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल डिक्लाइन. और बेटा ये डिक्लाइन हो रहा है, बराबर है, बट ये अप टू अ ऑप्टिमल लेवल तक लेगा तो यहाँ. अब उसके बाद भी अगर आप डेट लेते जाएगा तो दैट इज नॉट गुड. ठीक है? तो अपने को इसके थियरी में नेट इनकम अप्रोच में यही देखना है कि हायर डेट क्या कर रहा है? फाइनेंशियल लेवरेज इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? रिड्यूस. और अगर WACC रिड्यूस होगा तो दैट इज बेनिफिशियल फॉर द कंपनी. याद रखो. सो दिस इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ फर्म. मतलब वैल्यू ऑफ फर्म मींस कंपनी. ठीक है? दिस इंक्रीजेस व्हाट? वैल्यू ऑफ व्हाट बेटा? फर्म और कंपनी. इधर कंपनी होना चाहिए एक्चुअली. ठीक है? So and also increases value of equity shares. Also increases what beta? Value of equity shares. तो याद रखो, अगर higher debt है but up to a optimal level, that increases financial leverage. Ultimately, weighted average cost of capital get reduced. Right? Weighted average cost of capital get reduced, and which increases what? Value of the company. वो कंपनी का वैल्यू इंक्रीज करेगा, और कंपनी का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो बेनिफिट किसको होने वाला है? इक्विटी शेयर होल्डर को. एंड ऑल्सो इंक्रीजेस व्हाट? वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स. व्हाट? ऑल्सो इंक्रीजेस व्हाट बेटा? वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स. एंड वाइज वर्सा मींस जस्ट अपोजिट.
हायर की जगह पे लोअर ले लो, इंक्रीज की जगह पे डिक्रीज ले लो, डिक्लाइन की जगह पे राइज ले लो, ठीक है। तो वाइज वर्सा मीन्स व्हाट, जस्ट अपोजिट ऑफ दैट केस, ठीक है। तो याद रखो क्या बोल रहा है इधर, हमेशा याद रखना क्या बोल रहा है बेटा, हायर डेट अप टू ऑप्टिमम लेवल, ठीक है। तो हायर डेट इंक्रीजेस फाइनेंशियल लेवरेज which results into decline in the overall weighted average cost of capital। मतलब इसका थियरी जो नेट इनकम अप्रोच है दुरन डेविड, वो बोलता क्या है कि आप डेट लो, आप हायर डेट ले रहे हो तो उसका बेनिफिट इक्विटी शेयर होल्डर को पड़ेगा, राइट है, क्योंकि ज्यादा शेयर होल्डरशिप आएगा नहीं, और हायर डेट की वजह से कंपनी को बेनिफिट हो रहा है, और जो डेट का इंटरेस्ट है वो भी क्या है, टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर है, विच इंक्रीजेस फाइनेंशियल लेवरेज एंड डिक्लाइन इन दी ओवरऑल और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये इसका थियरी है। अब तुम लोग सोचेगा अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो, हाँ तो ऐसा वो नहीं बोल रहा इधर, प्रॉफिट नहीं होगा तो लॉस होना ही है, समझा कि नहीं, प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट कम होगा तो फिर कैसे मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर को। दीज ऑल आर एक्सेप्शनल केसेस, राइट है। अपने को थियरी देखना है, जो थियरी बोला है उसके हिसाब से फिलहाल काम करना है, इस थियरी का एजम्पशंस भी है ना बेटा। तो याद रखो क्या बोल रहा है ये नेट इनकम अप्रोच, हायर डेट इंक्रीजेस फाइनेंशियल लेवरेज, अल्टीमेटली डिक्रीजेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मींस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस होगा तो ऑलवेज रिमेंबर दिस इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ द फर्म, दैट इज वैल्यू ऑफ, इधर कंपनी लिख देता हूं मैं, वैल्यू ऑफ, this increases value of company, right, this increases value of company and also increases, भाई कंपनी का वैल्यू इंक्रीज होगा तो बेनिफिट किसको होता है, जो मेन शेयर होल्डर्स है, दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो एंड ऑल्सो इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, राइट, मींस इक्विटी शेयर होल्डर का वैल्यू इंक्रीज होगा, राइट है, इक्विटी शेयर्स का भी वैल्यू इंक्रीज होगा, तो कॉमन सी बात है, ठीक है। दैट इज व्हाट नेट इनकम अप्रोच। एंड वाइस वर्सा मींस जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट का केस देखना है, देख लो। अभी इधर समझो लोअर डेट आ गया, हायर की जगह पे लोअर डेट, डिक्रीजेस फाइनेंशियल लेवरेज, इंक्रीजेस डब्ल्यूएसीसी, और डब्ल्यूएसीसी इंक्रीज होगा तो डिक्रीजेस वैल्यू ऑफ कंपनी, और वैल्यू ऑफ कंपनी डिक्रीज होगा तो ऑल्सो डिक्रीजेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, दैट्स इट, राइट है। वाइस वर्सा मींस जस्ट अपोजिट, क्लियर। सो दिस इज व्हाट बेटा, दिस इज व्हाट योर नेट इनकम अप्रोच नॉर्मल बेसिक थियरी इज गिवन बाय होम, दुरन डेविड। लेकिन इसका जो भी थियरी है उसके लिए बेटा assumptions है, what assumptions are there, इकोनॉमिक्स में पढ़ा है ना, सब जो भी लॉ है उसके assumptions होते हैं, वैसे इसका भी assumption है। इसने क्या assumption दिया है देखो, सो assumption में ये क्या बोल रहा है, बेसिक assumptions ऑफ नेट इनकम अप्रोच इज व्हाट। अभी इसके assumption में पहला बोलता है टैक्स डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है कोई बात नहीं, टैक्स डू नॉट एग्जिस्ट पहले ही बोल दिया, तो देखना ही नहीं अपने को, वो टैक्स डिडक्टेबल वो सब छोड़ दो फिर, ठीक है, वो तो समझाने के लिए पता है। तो इसके थियरी में assumption क्या है, पहला टैक्स डू नॉट एग्जिस्ट, मतलब कॉर्पोरेट टैक्स डू नॉट एग्जिस्ट। अब जो assumption है दैट यू हैव टू फॉलो इट, और वो assumption आपको एग्जाम में भी लिखना है, जैसा है वैसा। सेकंड क्या बोल रहा है, डेट कंटेंट डज नॉट चेंज द रिस्क परसेप्शन ऑफ द इन्वेस्टर्स, मतलब डेट कंटेंट, अगर डेट ले रहा है तो वो रिस्क परसेप्शन जो होता है इन्वेस्टर्स का वो भी चेंज नहीं होना चाहिए, वेरिएट नहीं होना चाहिए। और ये पता है रियल लाइफ में वेरिएट होता ही है, बट इसने अपनी थियरी में क्या बोला है, अगर ये थियरी, ये इनकम नेट इनकम अप्रोच को देखना है तो उसके बेसिस पे जो डेट कंटेंट होगा दैट डज नॉट अफेक्ट द रिस्क परसेप्शन, राइट है, जो कि पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है, बट अपने को एजम्पशन है तो फॉलो करना है। फिर क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्या कॉस्ट ऑफ, अभी हायर डेट ले रहा है, इसने क्या बोला, हायर डेट मींस क्यों, वाई हायर डेट, क्योंकि डेट का कॉस्ट कम होगा। अब डेट का कॉस्ट कम होगा तो अल्टीमेटली बेनिफिट किसको जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर को ही जाएगा, बराबर है कि नहीं, अल्टीमेटली बेनिफिट किसको जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर को ही जाएगा, राइट है। अब कंपनी नया इक्विटी शेयर रेज करने से, अब कंपनी को अगर नया इक्विटी शेयर रेज करना है, समझो कंपनी को फंड चाहिए 10 लाख रुपीस, तो कंपनी के पास दो ऑप्शन है, पहला या तो पूरा इक्विटी ले या तो पूरा डेट ले, और एक थर्ड ऑप्शन क्या, दोनों का कॉम्बिनेशन, राइट। अब कंपनी को मालूम है अंडर दिस नेट इनकम अप्रोच कि अगर वो डेट लेगा नेट इनकम अप्रोच के हिसाब से, तो डेट में उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है, इक्विटी में कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा है, तो कंपनी नॉर्मल सी बात है कौन सा लेगा,
डेट ही लेगा ना, बिकॉज डेट हैव लेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो उसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको बेनिफिट होगा, उनको अच्छा रिटर्न्स मिलेगा, राइट है, उनको अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। लेकिन अगर वही कंपनी ने 10 लाख का इक्विटी रेज कर लिया, इक्विटी रेज कर लिया, तो पता है ना जब प्रॉफिट आएगा तो फिर सबको बाइफरकेट हो जाएगा। प्रॉफिट अभी ज्यादा शेयर होल्डर हो गए तो प्रॉफिट भी थोड़ा थोड़ा, प्रॉफिट भी सबको कम होगा ना, फिर कम मिलेगा। तो इसका थियरी कंट्रोवर्शियल है, बट थियरी है तो पढ़ना है, राइट है। तो इसने जो भी अपना एनालिसिस, रिसर्च एंड एनालिसिस किया है उसके हिसाब से पूरा निकाला है। और ये सब थियरी याद रखो, सिर्फ शॉर्ट नोट्स के लिए बता रहा हूँ। सब में अपने को सिर्फ वो खाली याद रखना है रिलेवेंट और इररिलेवेंट, और उसके बाद फॉर्मेट है, स्टेप। तो ये सब आपका शॉर्ट नोट्स और कंसेप्ट समझने के लिए, क्योंकि कंसेप्ट नहीं समझेगा तो मतलब क्या फिर, ठीक है। तो याद रखो, इस थियरी में सिंपल सा फंडा ये बोल रहा है, हायर डेट लेगा तो दैट इंक्रीजेस फाइनेंशियल लेवरेज। अच्छा सब लोग अटेंडेंस डाल दो पहले, एवरीवन पुट योर अटेंडेंस। सो हायर डेट इंक्रीजेस व्हाट, फाइनेंशियल लेवरेज, राइट, which decline, ultimately decline in the weighted average cost of capital। अब हायर डेट क्यों ले रहा है कंपनी, बिकॉज हायर डेट क्यों ले रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम रहेगा तो नॉर्मल सी बात है अल्टीमेटली बेनिफिट किसको होने वाला है, कंपनी की मार्केट वैल्यू पे ही अल्टीमेटली बेनिफिट होगा, इक्विटी शेयर होल्डर का वैल्यू बढ़ेगा। तो वही आपका एजम्पशन है, दिस इज व्हाट योर एजम्पशन, दैट इज कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दैट इज debt capitalization rate is less than the equity capitalization rate, right? क्या बोल रहा है, debt capitalization rate is less than the equity capitalization rate, मतलब ये इसका assumption है थियरी का। cost of debt अगर less होगा तो ही ये थियरी, this theory will be applicable, right? And net income approach will be applicable. So everyone remember it. What are the basic assumption of net income approach? What are the basic assumption? First, कॉर्पोरेट टैक्सेस डू नॉट एग्जिस्ट। सेकेंड वन क्या बोल रहा है, जो भी डेट कंटेंट है, डेट कंटेंट डज नॉट चेंज द रिस्क परसेप्शन ऑफ द इन्वेस्टर्स, राइट है, डेट कंटेंट डज नॉट चेंज द रिस्क परसेप्शन ऑफ द इन्वेस्टर्स। एंड थर्ड वन इज व्हाट, कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस, क्या होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अरे भाई अगर कॉस्ट ऑफ डेट लेस रहेगा देन ओनली हायर डेट विल बेनिफिट यू ना, राइट है। कॉस्ट ऑफ डेट अगर लेस है तो ये कंपनी हायर डेट लेगी तो उसका वैल्यू बढ़ सकता है, नहीं तो हायर डेट लेगी और कॉस्ट ऑफ डेट ज्यादा रहेगा तो वैल्यू कैसे बढ़ेगा फिर। सो दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट assumption which you all have to remember it, that is cost of debt is less than the cost of equity, that is debt capitalization rate is less than the equity capitalization rate, clear। so ये सब लोग को रिवाइज करना है, यहाँ तक घर पे अच्छे से रिवाइज करना। और कैपिटल बजटिंग जो चैप्टर हुआ है उसका प्रैक्टिकल जरा रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो उसको, ठीक है। तो दिस आर द बेसिक एजम्पशन, दीज आर द बेसिक एजम्पशन एंड दीज आर द नेट इनकम अप्रोच, सब याद रखो। सजेस्टेड बाय डूरन डेविड, कैपिटल स्ट्रक्चर इज रिलेवेंट, हायर डेट इंक्रीजेस फाइनेंशियल लेवरेज और डिक्लाइन इन WACC which increases value of company।